Hello students, how are you all? Today we're going to start with the chapter The Necklace from the book Footprints. It's written by Guy de Maupassant, who was born on 5th August 1850, was a French writer remembered as a master of short story form and a representative of naturalist school of writers who depicted human lives and destinies and social forces in disillusioned and often pessimistic terms. He wrote some 300 stories, 6 novels, 3 travel books, and 1 volume of verse. Okay, let's have the introduction of the chapter. The story revolves around a selfish lady named Matilda. She is unsatisfied with her life and she wants a rich husband, but because she belongs to a family of clerks and her family is unable to give dowry and she is married to a clerk. One day, both the husband and wife are invited to a party at the minister's house, but Matilda does not have good clothes and jewels to wear at such a party. Her husband suggests her uh, to buy a dress and ask an old friend for jewelry. उसका जो हस्बैंड होता है वो उसे कहता है कि आप ड्रेस खरीद लो, अपनी वाइफ को बोलता है, और ज्वेलरी अपनी किसी दोस्त से पूछ लो. शी देन बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड गोज़ टू द पार्टी. वो अपनी एक दोस्त से नेकलेस ले लेती है और पार्टी पे चली जाती है. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट प्रूव्स टू बी अ लेसन फॉर द अनहैप्पी लेडी. अब आगे क्या होता है ये आपको स्टोरी में पता चलेगा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नेकलेस. It is all about the necklace. The story revolves around the jewelry necklace. Okay, let's have a summary of the chapter. Matilda Loisel, that is the central character of the chapter, lived in an apartment with her husband, M. Loisel, and was very unhappy and unsatisfied with what life had given her. वो बहुत नाखुश है. And she was unhappy with the apartment's shabby walls and the worn out furniture. उसे घर में अपने घर में कुछ भी पसंद नहीं है कि उसके घर की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है. पुअर फैमिली में उसकी मैरिज हुई है. And she was also irritated by the way her husband reacted to homemade food while she dreamed of royal dinners being served in the exquisite silver dishes. वो बहुत इरिटेटेड रहती है कि उसका हस्बैंड कैसे रिएक्ट करता है होममेड फूड पे, और वो बहुत बड़े रॉयल डिनर्स के सपने लेती है. They were neither rich nor poor. She had to marry a clerk in the office of the Board of Education just because her family could not afford to give her dowry. उसे एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन के क्लर्क के साथ मैरी करवानी पड़ी क्योंकि उसका जो अपना जो फैमिली थी, उसके पेरेंट्स थे, वो डाउरी नहीं अफोर्ड कर सकते. शी आल्सो हेटेड विजिटिंग हर ओल्ड फ्रेंड जेने फॉरेस्टियर. उसकी फ्रेंड है जो बहुत अमीर है, रिच है, उसको जाना भी उसे पसंद नहीं है. अब शी वॉज अ रिच लेडी एंड मटिल्डा इनवाइट हर. उस पर उसको जेलस फील करती है मटिल्डा. वेन एवर शी विजिटेड हर शी बिकेम सैड एंड क्राइड फॉर डेज टुगेदर. वन डे व्हेन हर हस्बैंड रिटर्न्ड होम फ्रॉम वर्क ही गॉट एन इन्विटेशन टू अ पार्टी एट द हाउस ऑफ मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. एक दिन जब मटिल्डा का हस्बैंड आया और उसको इन्विटेशन मिला किसी मिनिस्टर के पार्टी पे जाने का. एंड अब क्या हुआ, मटिल्डा वॉज इरिटेटेड एंड एंग्री एंड थ्रू द कार्ड अवे. अब जो इनविटेशन कार्ड था उसने दूर फेंक दिया. उसे अच्छा नहीं लगा कि उसे बुलाया गया है. शी वॉज अपसेट बिकॉज शी डिडंट हैव एनीथिंग टू वियर एट सच एन एक्स्ट्रावेजेंट पार्टी. इतनी बड़ी पार्टी पे उसके पास कुछ अच्छा नहीं था पहनने को. Her husband gave her 400 francs to buy a new dress. Then he had been saving to buy a gun so that he could go hunting with his friends. दैट उसने 400 फ्रैंक्स उसे दे दिए, मनी दे दी अपनी वाइफ को ताकि वो ड्रेस खरीद सके. जो पैसे उसने अपनी गन खरीदने के लिए रखे थे. आफ्टर बाइंग द ड्रेस शी वॉज सैड बिकॉज शी डिड नॉट हैव ज्वेलरी टू मेक हर सेल्फ लुक मोर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव. Her husband suggested that she could borrow jewelry from her friend Forestier.
When Loisel went her friend's house and described this situation, she showed her the cupboard and asked her to choose whatever she liked. उसकी फ्रेंड ने उसे कपबोर्ड खोल के दिखा दिया कि जो भी वो लेना चाहती है ले सकती है. Matilda chose a precious diamond necklace which was kept in the ब्लैक सैटिन बॉक्स. उसने हीरो का एक वो नेकलेस ले लिया. दे वेंट टू द मिनिस्टर्स पार्टी एंड ऑल द मैन एडमायर्ड हर. सारे लोगों को बहुत पसंद आई वो क्योंकि उसकी फ्रेंड का नेकलेस था वो. शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस इन हर न्यू ड्रेस एंड ज्वेलरी. दे रिटर्न एट 4 in the morning. सुबह आए. बाई दैट टाइम Loisel had already dozed off in one of the rooms with three other men. Dozed off means वो सो गया था. उसका हस्बैंड आके अपने दोस्तों के साथ. They decided to leave and could not find a carriage. Finally, after walking for a while, they got a carriage and which dropped them right outside their door. अब घर पे वो पहुंच चुके हैं. Matilda realized that she did not have the necklace. अब उसे रियलाइज़ हुआ कि जो नेकलेस उसने लिया था वो तो उसके पास है ही नहीं. अब वो गए दोबारा. वेंट आउट टू सर्च अगेन एंड द रेलवे ट्रैक्स और नेकलेस. वो लॉयजल वेंट टू द पुलिस स्टेशन, कैब ऑफिस एंड आल्सो गिव एन एडवर्टीजमेंट फॉर रिवार्ड टू द पर्सन हु रिटर्न द नेकलेस. अब उसने जो वो चोरी हो गया उसके गले से गिर गया. अब उसको बहुत उसकी वरी हो गई कि अब मैं कहाँ से लेके आऊँ. एडवर्टाइजमेंट की न्यूज़पेपर्स में, पुलिस स्टेशन की. मीन वाइल ही टोल्ड हिज वाइफ to tell her friend that the clasp of necklace had broken and given it for repair. उसने बोला कि उसका नेकलेस में कुछ ख़राब हो गया है और उसने रिपेयर के लिए दिया हुआ है. आफ्टर अ वीक when the necklace could not be found, जब नहीं मिला तो decided to replace with a similar one. अब उसने उनके लिए कुछ और ख़रीद लिया उसके जैसा ही, लाइक कोई आर्टिफिशियल नेकलेस. दे फाउंड अ सिमिलर necklace priced at 36,000 francs. Fortunately, Loisel had inherited 1,800 francs from his father and the rest he borrowed. अब उसने जो पैसे बचा के रखे थे, अपने सेविंग की थी, उसने वो उसको बोरो करने में कुछ पैसे बोरो किए और वो नेकलेस दोबारा मीन्स उसने ख़रीदा कोई नेकलेस. इट टुक देम 10 years to repay all the loans. In these years their lives changed drastically. अब इतने साल लग गए उस पैसे को मोड़ने के लिए, वापस करने के लिए. दे मूव टू अ स्मॉलर अपार्टमेंट एंड रिमूव द मेड. मटिल्डा कुक द फूड एंड वॉश द क्लोज. असल वो अपने आप खाना बनाती, अपने आप कपड़े धोती. इवन उसका हस्बैंड वर्क मल्टीपल जॉब्स टू रीपे द बोर्ड मनी. और वो बहुत काम करना पड़ता उन्हें. इन दीज ईयर्स लॉयजल स्टार्टेड लुकिंग मच ओल्डर. बहुत बूढ़ा दिखने लगा उसका हस्बैंड. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. हर वॉइस बिकेम लाउड एंड शी बिकेम अ नॉर्मल पर्सन who would carry a basket to the grocery store. अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी. and the bushes store and the fruit store to buy their daily supplies. One day she met her husband Gianni with a child and decided to tell her the truth. अब वो उसको दोस्त मिले उसका सच बताने के लिए कि उसके नेकलेस के साथ क्या हुआ है जिससे उसने बोरो किया था नेकलेस. And explained how she was indirectly responsible for her aged looks and her living conditions. She explained how she lost her borrowed necklace and had to take a loan for replacing it. अब उसे बताना पड़ा कि कैसे उसने तुम्हारा नेकलेस था तो इतना महंगा था वो गुम कर दिया था और उसे बोरो करना पड़ा कोई और नेकलेस. ऑन हियरिंग दिस Janet told Matilda that the necklace that she had borrowed was a fake one. अब उसे जियाने ने बताया और इस्तियर ने कि जो मैंने तुमको दिया था नेकलेस वो मैंने भी उधार लिया था. was a fake one. वो तो मीन्स वो था ही नहीं, आर्टिफिशियल था, वो ऑथेंटिक था ही नहीं. एंड वाज नॉट वर्थ मोर देन 500 francs. वो तो 500 francs का ही था. दैट वाज द स्टोरी ऑफ द चैप्टर द नेकलेस. थैंक यू स्टूडेंट्स.